segment on Delhi Dangal. Now, in this segment, we are going to, of course, talk about how the political battlefield in the national capital is only heating up ahead of the Delhi Assembly election. Now, the questions are, of course, that is this a battle only between the Aam Aadmi Party and the BJP? Has the Congress Party been completely written off by the voters in the national capital? Is freebies a preference still among the voters, or is the electorate beyond that? A crusader battling corruption and anti-incumbency. The challenger seeking to return to power after 20 years. And the late entrant who could end up playing spoiler. The stakes have never been so high in the national capital. Over the next 30 minutes, CNN News 18 is going to 4 big battlegrounds to get the pulse of the dangal in Delhi. With Red Fort in my background, you must have guessed by now, yes, I'm in Chandni Chowk, which is the business hub and is a constituency that is rich in history and is high stake. When we talk about the politics in Chandni Chowk, it has been a Congress bastion since 1998 till 2013, when the Aam Aadmi Party entered the picture. It became a bastion of the Aam Aadmi Party. Now, for the past 2 assembly elections, the Aam Aadmi Party has been winning this constituency. But overall, when we talk about the Lok Sabha election, Chandni Chowk has always been a place for the BJP. They have been winning it for years altogether. But when we talk about the assembly elections, it is now an Aam Aadmi Party bastion. Alright, so we have decided to start this journey on a sweeter note. So I have reached Jalebi Wala, which is the oldest shop in Chandni Chowk and which has been running for generations altogether. So here is my jalebi and rabdi. This is what generation this is that you are running this? I am 5th generation now. You're the 5th generation. Yeah. Okay. And you know, when we talk about the revamping of Chandni Chowk, it is right in front of your shop. तो आपको लगता है कि कुछ revamping हुआ है ढंग का? No, ma'am. I was born here in Chandni Chowk. I am like 46 now, and earlier it wasn't this beautiful. It is very beautiful now. The total landscape has changed. It is not how it used to be. Earlier there was jam and everything. Nothing like that happens now. आप लोग दिल्ली से ही हैं? तो क्या लग रहा है, आप लोग चांदनी चौक में पहले आते रहते हैं कैसे? हाँ, आते रहते हैं। तो क्या साफ सफाई हुई है? आपको लगता है 2-3 साल में जो रीडेवलपमेंट जब से गाड़ियाँ बंद हुई तब से थोड़ा ठीक हो गया है। पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन रिक्शे बहुत हो गए। चांदनी चौक में डिफरेंस आया है कुछ? चांदनी चौक में ये जो सड़कें बनी है, भीड़ का थोड़ा सा वो हुआ है मैनेजमेंट, लेकिन ये तो सब ऐसा ही है कि एक लगता है और 100 रुपए के बिल बनते हैं। तो मतलब और भी होना चाहिए, ये लगता है आपको और भी साथ? हाँ, नेचुरली अगर इसका जो सपना देखा था वो सपना थोड़ी पूरा हुआ है। जी, आपका क्या कहना है, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ का तो बीजेपी के चलेंगे। यहाँ का तो बीजेपी के। बीजेपी का है? हाँ, अच्छा, तो फिर इतने सालों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जीतती आ रही है यहाँ? नहीं, अब की बार उम्मीदवार है। अच्छा, एकदम पक्की उम्मीदवार। We have in fact now come to Khali Baudi, one of the biggest Asian markets of dry fruit. When we talk about it is in fact one of the biggest business hub in Chandni Chowk, and I am in fact joined by the president of Khali Baudi, Mr. Rajiv Batra. सर, जब हम बात करते हैं चांदनी चौक की और यहाँ तो मतलब खाली बावड़ी की बात करें तो यहाँ तो काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट अराउंड 2 years बैक द सीएम हैड अनाउंस्ड दैट द 5 markets विल बी सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट, एंड खारी बावली वाज वन ऑफ दोस मार्केट, एंड दिस इज द प्लेस विच वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट डेवलप्ड मार्केट इन द, एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट यू कैन सी over here all the sewage are overflowing. There is no proper road way. The
footpath is totally broken off. मतलब it is just like a slum. क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रिवैम्प हुआ है वो सिर्फ आगे जो है कुछ मीटर्स के लिए हुआ है, क्योंकि अंदर तो कुछ साफ दिख नहीं रहा है? आगे भी आपको मैम दिख रहा है कि वो हुआ है, एक्चुअल में कोई मेंटेनेंस उसकी आज डेट पे है ही नहीं। आप आज भी शाम के टाइम पे खारी बावली जाओ, कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। वहाँ पे है कि जो आपके रिक्शाज जो है वो एक लिमिटेशन में चलने चाहिए, लोग स्कूटर चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, कोई है ही नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला। Now I'm joined by Mr. Sanjay Bhargava, who is in fact the president of Chandni Chowk Sarv Vyapar Mandal, who have in fact filed a petition in Delhi High Court saying that the revamping of Chandni Chowk is not done enough. आप लोगों ने what exactly was the PIL that you have filed? Madam, this redevelopment project was inaugurated in 2021 by the Honorable Chief Minister of Delhi, and we've been working on this project for last about 25 years. And it was inaugurated in 21, and thereafter, after 21, the situation has deteriorated. No agency or anybody is interested in doing it. There are directions of the High Court of Delhi, and nobody is following those directions. And the situation is so bad that any directions have been flouted. Who exactly do you think is responsible for this situation? Because maintenance has not been done. All the 5 agencies, MCD, PWD, Delhi Police, Delhi Traffic Police, and all these agencies are responsible of all this. In stark contrast to the old world charm of Chandni Chowk is the New Delhi constituency, where the rich and the poor live side by side. This is easily the most high-profile battle, with former Chief Minister Arvind Kejriwal in the running and the children of 2 former Chief Ministers, Congress's Sandeep Dikshit and BJP's Parvesh Verma, challenging AAP. A constituency home of top political leaders, judges, bureaucrats, industrialists and slums of poorest of poor. This has always been a high-profile seat, but this time around stakes are even higher, because the fight is between 3 times former Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal and 2 sons of former Chief Ministers of Delhi. Sheila Dikshit's son Sandeep Dikshit is from Congress Party and Sahib Singh Verma's son Parvesh Verma is from BJP. It is New Delhi Assembly constituency. This high-profile constituency was earlier known as Gol Market, and this seat has given Chief Ministers for 6 times. For years, the New Delhi constituency has been the seat to power. The late Sheila Dikshit contested from here and was a 3-time Chief Minister. Kejriwal fought from the seat and ended her reign. Now, Congress is seeking revenge and BJP is sensing opportunity. सबसे पहले तो आपके मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या अलग करेगी भाजपा? मैं पहले आपको एक अच्छा सजेशन देता हूँ, टिप देता हूँ। जैसे आपने मेरा कैंपेन कवर किया, जाके केजरीवाल का कैंपेन भी कवर करिए। उसके पास में तो 4 आदमी भी नहीं घूम रहे हैं, एक दरवाजे में हाथ जोड़ता फिर रहा है। लोग कह रहे तुमने कोई काम ही नहीं किया, तुम 11 साल में शक्ल ही नहीं दिखाए, क्योंकि वो आपको अपने कैंपेन में बुलाता नहीं है, घुसने नहीं देता। 1 महीना हो गया, दिल्ली वालों ने केजरीवाल क्या कैंपेन कर रहा है आज तक वो जो है कोई भी फोटो नहीं देखी। केवल वो टेबल पे आके रोज आके ये घोषणा है, ये घोषणा, ऐसे ऐसे झूठ बोल देता है। और भाजपा की जो गारंटियां हैं, चाहे 2500 रुपए हैं, अभी कल पार्ट 2 भी आने वाला है उस मैनिफेस्टो का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को 21,000 साल का आप देंगे प्रेग्नेंट महिलाओं को, तो उसको लेकर वो आपको कैसे दिख रहा है ग्राउंड में? उसको लेकर क्या आपको सपोर्ट नजर आ रहा है? जनता कैसे सपोर्ट करेगी? देखिए, पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो बिल्कुल करती है, और हम केवल वही वायदा करते हैं जो हम उसको कर सकते हैं। आशीर्वाद, डेवलपमेंट को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि विकास हो पाएगा फिर से दिल्ली में। आप मिलके मुझे क्या चिंता है? कितना पुराना साथ है जब हमने बचपन। It's a very interesting constituency. You have central government employees, you have NDMC employees, you have private colonies like Golf Links and Jorbagh, you have ministerial colonies, you have a lot of domestic help quarters where people are staying, and slums. So it's a very interesting mess. You have a Balmiki, huge Balmiki Basti. So everybody, there's a Pilanji Gaon, so everybody has different problems. So how Sandeep is looking at it is that instead of having a holistic approach, he is looking at problems
for example, NDMC. NDMC staff is facing huge. One was the muster roll. I don't know if you've heard of it. During Mrs. Dixit's time, there used to be a muster roll which used to give employment to thousands of youth. And then also contractual people used to get, their jobs used to become permanent. And especially if somebody had lost a family member, their family members used to get a job. All this has stopped in the last 10 years. And this has caused a lot of unemployment. So Sandeep's way is that to re-establish what Sheila ji did. This is the place where I'm standing at this point, from where Prime Minister Modi started his Swachh Bharat campaign, and in fact Arvind Kejriwal chose his party sign broom from this area. This is Valmiki Basti in New Delhi constituency where we are standing. इसी सीट से जो जीतता है 1998 से हम देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। शीला दीक्षित भी 98 से 2008 तक जीती थी। तो सबसे पहले तो बताइए इस बार का माहौल क्या है? क्या इस बार का माहौल ऐसा है जी, केजरीवाल जी ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया, तो शायद हमारे यहाँ से जो है 60% वोट उसको नहीं जाएगा। बिजली पानी की जो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं कर सकता यहाँ पे, कोई फ्री नहीं है। का बिजली पानी कोई फ्री नहीं कर सकता। किसी का 3 लाख रुपए बिल आ रहा, किसी का 2 लाख, कोई इस पर डिपेंड नहीं करता। मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ से जो जीतेगा इस बार, क्या आप उसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखेंगे? क्योंकि पिछले 20 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। जब वो बहुमत आए जब तो बनेगा, जब बहुमत आएगा जब बन नहीं बनेगा। राजा साहब ये बिजली पानी का ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है कि वो दूँ कुछ नहीं करेगा। इधर जवान कर रहे हैं, बस जवान कर नहीं रहा है, बस बोलता है। बोलेंगे और करेंगे नहीं, ये गारंटी हम। This packed Hanuman temple is the epicenter of election season politics. Kejriwal is trying to blunt BJP's Hindutva pitch by calling himself a Hanuman Bhakt and accusing the Saffron Party of being in love with Ravan. दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब दांव ठोक रहे हैं। आपका जो ज्योतिष है, आपकी जो फेस रीडिंग है, आपकी जो हस्तरेखा है, दिल्ली को लेकर क्या प्रेडिक्ट कर रही है? प्रेडिक्ट तो ये कर रही है कि आने वाला जो समय वर्ष दिख रहा है कि बीजेपी का बोलबाला होने वाला है और बाबा हनुमान जी की आशीर्वाद है उनके ऊपर, और मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो अच्छाई होगी वही नज़र आएगा। सारी चीज़ें तो अभी इस टाइम सारी नीचे बैठते हुए और वही मोदी जी ये उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। दर्शन करने आप जा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव है। हाँ जी, क्या माहौल है? किसकी सरकार बन रही है? देखो जी, अगर एक शब्द में बोलूँगा तो बीजेपी पर। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी भी आम आदमी पर नौसखी है, तरीके से काम नहीं कर सरकार। 10 साल कुछ नहीं होता। चाचा आप बताइए, दिल्ली में चुनाव है जी हाँ, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कौन सी पार्टी दिल्ली के लिए अच्छी है? भैया हमें तो बीजेपी अच्छी लग रही है, कुछ विकास करेगी। ये तो झंझट कर रखा है इसने, बहुत छल कर रखा केजरीवाल ने। और क्या? ऐसा क्यों? क्या परेशानी हो रही है? अब ये कहते हैं कि पानी फ्री है, बिजली फ्री कहाँ है? एक दफे कम कर दे, दूसरी दफे 3 गुना कर दे। 18,000 वो पुजारियों को और जो ग्रंथीज है उनको, उसका भी फायदा है? क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं फायदा होगा? जब वो अब उनको डायरेक्ट मिलेंगे हर महीना तो क्यों नहीं फायदा होगा उन्हें? अच्छा, और क्या क्या चीजें आपको लगता है कि दिल्ली में हुई है, आम आदमी पार्टी ने की है? दिल्ली में देखो, लेडीजों के लिए फ्री बस है, फिर बिजली वाला जो फ्री है, पानी फ्री है, और क्या चाहिए आदमी का? हॉस्पिटल फ्री है, और क्या चाहिए आदमी? 2500 तो बीजेपी भी कह रही है कि वो 2500 देगी। बीजेपी ने तो 2 करोड़ दे रही थी, बीजेपी 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, नौकरियां दे दिया। ये जुमले बीजेपी। Arvind Kejriwal is largely focusing on big road shows and big rallies. Sandeep Dixit is doing door-to-door campaign, and Parvesh Verma of BJP is focusing on nukkad sabhas and smaller rallies. But ultimately, it is going to be the people of New Delhi Assembly constituency who will decide that who's going to be their member of Legislative Assembly from this seat. We also have 2 other seats in this show. Let's go to those and find out what is happening there.
States. He has now weighed in on the ongoing debate over the H-1B foreign guest workers visa. Situated on the banks of this polluted Yamuna is this very, very important constituency of Okhla. In most places out here in the national capital, it is seeming like a two-way or a three-way fight. But out here in Okhla, it can well be a four-way fight, with AIMIM fielding Shafaur Rahman in this Muslim majority-dominated constituency out here in the national capital. Over the next few minutes, stay tuned as we take you deep inside this constituency to figure out as to what are the issues on which the people of Okhla will cast their ballots. Third constituency is the Muslim-dominated Okhla. Sitting AAP MLA Amanatullah Khan went to jail in a money laundering case but was released due to lack of prosecution sanction. Now he's contesting again, prompting the Congress to field councillor Ariba Khan. Asaduddin Owaisi's AIMIM is also in the fray, fielding Delhi riots accused Shafaur Rahman. But BJP has given a ticket to Manish Chaudhary and is hoping that Muslim votes get divided among the other three players. इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ओखला में कभी भी बीजेपी का एमएलए नहीं आया है, तो इस बार ऐसा क्या अलग है कि आपको लग रहा है कि आपका माहौल इस बार बन पाएगा? देखिए, मैं जो है मुझे मालूम है और मुझे अपने क्षेत्र की जनता और अपने पर विश्वास है कि इस बार जो है जो कोई नहीं कर पाया वो इस बार भारतीय जनता पार्टी और मैं करके दिखाऊंगा और ओखला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बन के आएगा। क्या माहौल है इस बार? ओखला में कभी भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, इस बार ऐसा क्या अलग है? ये इसलिए हमारे यहाँ पर पक्का खुलेगा कि मनीष जी ने जो इनकी मिस्सी थी एज ए काउंसलर, एक एक आदमी को ये लोग जानते हैं यहाँ पर, और इन्होंने पूरे टाइम में जो काम किया है उसी का ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ये बोला जाता है कि जो मुसलमान होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और ये जो पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मुसलमानों से डोमिनेटेड है, तो यहाँ कैसे जगह बनेगी बीजेपी की? ऐसा नहीं है, इस बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लोग वोट देंगे और मुसलमान राष्ट्रवादी होता है, और पूर्ण मुझे विश्वास है पूरा का पूरा मुसलमान वर्ग हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। Okhla was the epicenter of the 2020 Delhi riots and Shaheen Bagh protests over CAA. But 5 years on, the residents here want peace and development. ये बताइए, यहाँ पे धोबी घाट इलाका है, इतने सारे लोग रहते हैं, यहाँ जो कंडीशन है किस तरीके के हालात में यहाँ रह रहे हैं, और पिछले 10 साल में यहाँ पे कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, क्या नाम है, हालत यहाँ पे ख़राब ही है। यहाँ पे सब गंदगी इतनी है, बहुत मच्छर लगता है, दुनिया का बीमारी फैल रहा है यहाँ पे। वैसे ही क्या नाम है, दुनिया की बीमारी चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं और ये अमानतुल्लाह खान अपने आप को एक ऐसा आदमी दिखाना चाहते हैं जो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ आपके आसपास पिछले 25 साल में या पिछले 10 साल में कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे आपकी कम्युनिटी के लिए कम से कम कुछ बेहतरी के लिए काम हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब आपके सामने है, पॉल्यूशन सब देखिए आप, कोई भी ऐसा काम नहीं दिखाई देने का। कहीं भी जाकर आप सर्वे करिए, कोई बताए तो कोई काम ऐसा। यहाँ पे जो आपके नेता हैं वो लोग कभी आते हैं यहाँ पे आपसे मिलने या आपका हाल पूछने? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। भैया, यहाँ शाहीन बाग में क्या दिक्कतें आती हैं? इस बार इलेक्शन आ गया है, चुनाव आ गया है, 4 लोग हैं चुनाव में बड़े बड़े, इस बार क्या इश्यूज लग रहे हैं चुनाव में जिसके लिए आप वोट देने जाएंगे? हाँ सर, यहाँ शाहीन बाग में ज़्यादातर रोड ख़राब है, वो ठीक हो रही हैं, काम चल रहा होगा, आप घूम रहे हैं, देख रहे होंगे शाहीन बाग में। प्लस सरिता विहार में, मैं सरिता विहार में रहता हूँ, यही असेंबली में आती है वो भी, तो वहाँ पे भी सेम यही इशू है, और थोड़ा नॉर्मल यही। पिछले 10 साल में विकास हुआ है यहाँ पे? चीज़ें ठीक हुई हैं या चीज़ें खराब हुई हैं? कैसा कंडीशन रहा है? विकास हुआ है यहाँ पे। गंदगी इतना हर जगह फैला हुआ रहता है, रास्ते खुदे हुए रहते हैं, हमेशा रास्ता कहीं टूटा रहता है। अभी आप 10 कदम आगे जाके देखिए, नाला बना पड़ा 2 महीने, कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं। And finally, there is the big battle in Kalkaji, where Chief Minister Atashi is up against Congress's Alka Lamba and BJP's Ramesh Bidhuri. Beyond a mere political contest, this three-way battle has become a crucible to test Delhi's political future, where each candidate is bringing their own brand of legacy, controversy and promises to a constituency
that mirrors Delhi's socio-economic contrasts. Weeks before the election, Bidhuri sparked controversy when he mocked Atishi's decision to stop using her surname Marlena, prompting the chief minister to break down in a press conference. आतिशी सिंह के नाम से वोट मांग रही हैं और आज भी उनका नाम फिर दोबारा पुनः जब नॉमिनेशन भरा है तो आतिशी मार्लिना के नाम से भरा है। तो आतिशी मार्लिना के नाम से भरा है तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस मानसिकता की, किस मेंटेलिटी की हैं वो लोग। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? मैं जानना चाहूँगा, आप सांसद रहे हैं यहाँ से, अब की बार विधायकी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके ऑपोजिशन में कहें कि इस टाइम पे 2 महिलाएं हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, दोनों ही समझी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली की लड़ाई तो इंटरेस्टिंग है लेकिन ये सीट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ माहौल लग रहा है अब तक? देखो, माहौल, मोदी जी चुनाव इस बारी दिल्ली को वो वर्ल्ड वाइड राजधानी बनाना चाहते हैं। देश में मोदी जी ने विकास किया, वो दिल्ली का विकास कराना चाहते हैं जिससे देश की बदनामी दुनिया में ना हो कि भारत आज विकसित राष्ट्र बनने की तरफ, थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और राजधानी इतनी दूषित है, इतनी गंदी है। तो देश की राजधानी भी विश्व स्तरीय राजधानी हो, ये मोदी जी की इच्छा है और दिल्ली के लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि मोदी होंगे तो दिल्ली में ही विकास होगा, वरना बहुत मुश्किल है। पिछले 10 साल में दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, एक बूंद पानी नहीं बढ़ाया गया। 950 MGD पानी था, आज भी उतना ही है। आज रिक्वायरमेंट 1350 MGD की है। केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, आने वाले 5 साल में तो फिर मोदी जी PM है, तो 5 साल बाद भी यही कहेंगे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। तो लोगों ने मान लिया है, इसलिए। Now both AAP and Congress want to capitalize on the anti-woman sentiment against Bidhuri and the BJP. एक तरफ आतिशी मार्लेना है और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी हैं। कहते हैं कि दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। आपको क्या लग रहा है, किससे आपकी कहें कि कड़ी टक्कर है, चुनौती कौन है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, दोनों को कालका जी देख चुका है। बिधूड़ी 10 साल सांसद, कम नहीं थे, 10 साल सांसद, केंद्र में इनकी सरकार, तीनों नगर निगम पार्षद कालका जी में बीजेपी के हैं। लोगों ने देख लिया, खूब नाराजगी, गुस्सा है क्योंकि गंदगी है, विकास कुछ नहीं। दूसरी आतिशी मरलीना है जो यहाँ से पहली बार आई, विधायक बन गई केजरीवाल के नाम से, इस बार फिर सोच रही हैं केजरीवाल के नाम से वोट पड़ जाएगा उन्हें। नहीं, इस बार आपके काम पर वोट पड़ना था, आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए वोट आपको नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक केजरीवाल जी का झूठ मैं देख रही हूँ, पूरी दिल्ली पट डाली है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप तो मुख्यमंत्री होने ही नहीं वाले। अदालत ने तो आपके हाथ बांध दिए, आप पे पाबंदियां लगाकर आपकी कलम छीनी हुई है और वो पाबंदी तो अभी तक लागू है, आप कैसे होंगे? दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बहुत सालों से रह रहे हैं, कितने क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ इश्यूज हैं? बेटे, हमारी पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन नहीं मिल रही। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि 2500 देंगे, 2500 देंगे, क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे, ऐसी झूठ बोलते हैं। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? देखो, बीजेपी कहते हैं। क्या लगता है, क्या इश्यूज है यहाँ पे? यूथ की बात करें तो क्या आपको लगता है कि मुद्दे हैं? यहाँ पे पार्क नहीं है, जैसे कोई मॉर्निंग वॉक पे जाना तो बंदा नहीं जा सकता, दूसरे एरिया में है। यहाँ पे खुद का पार्क नहीं है, एक तो गलियाँ ऐसी है, गलियाँ में अच्छी नहीं है गलियाँ। The Kalkaji constituency can be seen as a melting pot, where people from Uttar Pradesh, Bihar, Bengal and other states speak in one voice on the need for development. अभी आप डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिक्स और यहाँ के मुद्दे। कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो क्या मुद्दे हैं, क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं, जरा हमें बताएं। सर, पहली बात तो ये है कि जो ये दिल्ली स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो फ्री में जो रेवड़ियाँ बांट रही है, ये सिर्फ बंद होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो एजुकेशन के ऊपर स्ट्रक्चर होना चाहिए और ये मेडिकल के ऊपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बाकी जो फैसिलिटीज है आप उसको बंद कीजिए और दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप कीजिए, उसको इतना डेवलप कीजिए कि बाहर से लोग आए, स्टडी करने के लिए आए, उनको समझ में आए कि हाँ यार, दिल्ली इज ए कैपिटल। इस वक्त दिल्ली के ऊपर इतना प्रेशर है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप एक गोल चक्कर में चल जाओ, वहाँ पे एक बाथरूम बना हुआ है, लोग ओपन में बाथरूम करते हैं। अब लगा लो कि मेरे को 10 साल से उसे देख रहा हूँ, एक बाथरूम नहीं बना पाया कोई भी आम आदमी पार्टी के लिए। पार्टी तो फायदा क्या चीज़ का? टक्कर एकदम खुल के है। आम आदमी पार्टी भी घबराई हुई है, अदर पार्टी भी घबराई हुई है। इस बात से घबराई हुई है, पहले तो केजरीवाल को ये कन्फर्म रहता था कि मैं पक्का आऊंगा, लेकिन इस बार श्योर नहीं है, इस बार घबराया हुआ है।
क्योंकि पब्लिक का कुछ रिजल्ट 10 साल में देखने के बाद कुछ तय होने वाला है। प्रयास करने से समस्त रोगों का निवारण होता है। आपको लगता है काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली में काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। अभी उतने लेवल पे नहीं हुआ है। दिल्ली हमारी नेशनल राजधानी है, तो इसको हाई लेवल पे वर्ल्ड में दिखाना है कि दिल्ली बहुत अच्छा है। इसलिए अब की बार तीनों कैंडिडेट अच्छे हैं, टक्कर भी बड़ी ज़बरदस्त है, कांग्रेस वाले भी चल रहे हैं। अब चुनाव ही बताएगा, इस बार तो ज़्यादा मार्जिन से नहीं हो पाएगी। एक कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं ऐसा बोला जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है? अभी तो अतिशी जी का पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ की सीएम भी रह चुकी, सीएम भी है और यहाँ की विधायक भी हैं। काम भी उन्होंने बढ़िया किया है। कुछ कमियां हैं जो आके वो दूर करेंगे, जो उन्होंने वादा किया है। As the national capital prepares for elections of 2025, this election would not only change Delhi's political future, but could also signal a shift in political winds across the nation. While Delhi is a small state whose statehood status remains debatable, this election is compelling. Will Delhi continue its decade-long trust on Aam Aadmi Party, or would BJP be able to break its 27 years old opposition streak, or could Congress make a comeback? Only time will tell.